Good morning, student. Welcome to you in your political science class. As you know, in our last classes we completed different chapters of contemporary world politics. That was among UN, United Nations, International Organization, and contemporary South Asia and alternative centers of power. In that chapter, we completed up to China and some countries like India, Israel and Russia, organization like European Union. So after that, in this class, we are going to start a new chapter, that is the chapter number 9, Globalization. Chapter number 9, which we are going to start today, that is Globalization. In this part, first of all, we will read about the concept of globalization. Concept of globalization, in which the different examples are there of globalization. As you are not unaware of this chapter, in your earlier classes, up to 10th class, in your economics book or in your this class economics book, you read about globalization. So globalization is not a new concept for you. You are very well aware of this concept. So before we know about the various consequences of globalization. So what is meaning, what is the concept of globalization, what are the causes of globalization, and what is the role of India in globalization? We are going to start today the concept of globalization. In your book, 3 examples are given of globalization. First example is the example of Janardhan. Janardhan works in a call center. Janardhan works in a call center. He leaves late in the evening for work. Janardhan एक कॉल सेंटर में काम करता है और वो लेट इवनिंग को अपने घर से निकलता है और when he entering his room or when he enters his office, then his name changed. Then he became John. Why he becomes John when he enters his office? He acquired a new accent and speaks a different language. That then he does what is at home. देखिए जैसे ही जनार्दन अपने ऑफिस में एंटर करता है तो उसका नेम जो है वो जनार्दन से जॉन हो जाता है और उसकी जो असेंट है, जो लैंग्वेज है, वो भी चेंज हो जाती है वैसे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि he has to communicate with those people who are living thousands of miles away. अब उसको उन लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ता है जो कि उससे thousands of miles दूर हैं और they are not able to understand. The people who are away from him are not able to understand his own language, his own accent. So he has to talk in their language. और इसके साथ साथ जनार्दन is working for late hours for in the whole night. As today, as there is day in India and at other country there is night, or there is day in India it is night. तो इस तरह से उसके जो holidays हैं, they also not correspond to the Indian calendar. उसकी जो छुट्टियां हैं वो भी इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि जो उसके क्लाइंट्स हैं, those of the clients, so many of his clients who happen to be from the US, क्योंकि उसके क्लाइंट जो हैं वो US से हैं. तो this is a one example of globalization. And the second example which is given in your book, that is Ramdhari. Ramdhari has gone shopping to buy a birthday gift for his 9-year-old daughter. उसको जो रामधारी है, रामधारी को अपनी बेटी के बर्थडे के लिए, जो कि 9 years की है, उसके लिए गिफ्ट लेना था. तो the girls want to buy a bicycle
and later on Ramdhari bought a bicycle for his daughter, और उसके बाद the cycle was manufactured in China, and जो साइकिल है उसके स्पेयर पार्ट्स की आप बात करें तो दैट वाज मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। और लेटर ऑन इन अगर हम उसके फर्स्ट बर्थडे की बात करें उसके बेटे के, तो रामधारी हैड बॉट वन बार्बी डॉल विच वाज मैन्युफैक्चर्ड इन US फॉर हिज गर्ल। अपनी बेटी के लिए उसको रामधारी को एक जो बार्बी डॉल थी वो दी उसने, जो कि US में मैन्युफैक्चर्ड हुई थी बट बीइंग सोल्ड इन इंडिया। तो इसके साथ साथ ही अगर जो तीसरा एग्जाम्पल हम कहें तो थर्ड एग्जाम्पल इज गिवन ऑफ सारिका। सारिका इज द फर्स्ट जनरेशन लर्नर who had done remarkably well throughout her school and college life. Sarika was a very good student in his school and college life. Later on, she, due to her work hard, she got an opportunity to take on a job and become an independent career, while the women of her family had never dreamed of her. अपनी हार्डवर्क से उसको बाहर जॉब मिल गई, और लेकिन उसकी जो फैमिली थी उसकी ऐसी वैल्यूज नहीं थी। मैंने प्रोटेस्टेड दैट कि जो है वो शी कांट डू वर्क आउटसाइड, कि वो बाहर जो है काम नहीं कर सकती, बट इन स्पाइट ऑफ देयर प्रोटेस्ट शी गॉट वर्क आउटसाइड, उसको बाहर जो था वो जॉब मिल गई। तो इतना ही नहीं, अगर हम बात करें कि ऑल दीज थ्री एग्जाम्पल इलिस्ट्रेट एन एस्पेक्ट हमें रिच ऑफ ईच ऑफ व्हाट वी कॉल ग्लोबलाइजेशन। हम ये तीनों एस्पेक्ट ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं। पहले एस्पेक्ट में जहाँ पे जो फर्स्ट वन है जनार्दन, वो एक कॉल सेंटर में काम कर रहा है, तो इंडस्ट्री इज पार्टिसिपेटिंग इन द ग्लोबलाइजेशन सर्विसेज। He is participating in the globalization services. Second one, Ramdhari bought something manufactured in US or in China. अगर चाइना और US का बना हुआ रामधारी कुछ खरीदता है तो इसका मतलब क्या है कि he is also engaged or involved in the movement of goods from one place to another. और तीसरा अगर हम सारिका की बात करें तो शी गॉट ए जॉब आउटसाइड फ्रॉम अब्रोड अवे फ्रॉम इंडिया। तो इन दिस वे शी इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज एट ग्लोबल लेवल। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये तीनों के तीनों जो हैं वो ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस में लगे हुए हैं। लेकिन इतना ही नहीं, अगर हमारे में कुछ और एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, अगर हम उनको देखें तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट सम फार्मर कमिटेड सुसाइड बिकॉज देयर क्रॉप्स फेल्ड। दे हैड बॉट वेरी एक्सपेंसिव सीड्स सप्लाइड बाय अ मल्टीनेशनल कंपनी MNC। देखिए MNC के द्वारा कुछ फार्मर ने जो थे वो सीड्स खरीदे, लेकिन उनकी क्रॉप्स फेल हो गए। तो उतना ही नहीं, एक इंडियन कंपनी जो थी बॉट ए मेजर राइवल कंपनी बेस्ड इन जॉर्जिया डिस्पाइट प्रोटेस्ट बाय सम ऑफ द करंट ऑनर्स के प्रोटेस्ट के बावजूद भी एक कंपनी इंडियन जो थी उसने राइवल कंपनी को खरीद लिया और उससे उसको नुकसान हुआ। अगर और एग्जाम्पल की बात करें तो मैनी रिटेल शॉपकीपर फियर दैट, बहुत सारे जो रिटेल शॉपकीपर हैं उनको डर है कि दे वुड लूज देयर लाइवलीहुड इफ सम मेजर इंटरनेशनल कंपनी ओपन रिटेल चेन इन द कंट्री। कुछ इंडिया के रिटेल शॉपकीपर्स को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर इंटरनेशनल कंपनी अपने रिटेल जो कॉर्नर्स या रिटेल शॉप खोल दे तो उनको नुकसान हो। ऐसे ही वन फिल्म प्रोड्यूसर इन मुंबई
Mumbai was accused of lifting the story of his film from another film made in the Hollywood. तो एक जो फिल्म प्रोड्यूसर है मुंबई में, उस पर ये आरोप लगाया गया कि उसने हॉलीवुड की फिल्म का एक स्टोरी को ले लिया है और स्टोरी अपनी फिल्म में बना दी है. और another example is a militant group issued a statement threatening college girls who wear western dresses, western clothes. कि एक मिलिटेंट ग्रुप ने उन लड़कियों को एक थ्रेटन दिया कि those who are wearing western clothes. तो all these examples, what they show, ये तीन सारे के सारे एग्जाम्पल हमें क्या शो करते हैं कि जो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन है दैट इज नॉट ओनली नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव. इफ इट इज पॉजिटिव इट कैन बी नेगेटिव. कि इसके नेगेटिव और पॉजिटिव जो है दोनों ही इम्पैक्ट्स हैं, नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव इम्पैक्ट. और तो जो ग्लोबलाइजेशन है नीड नॉट ओनली रिलेटेड विद द इकोनॉमिक इश्यूज, बट ये जो खाली इकोनॉमिक इशू से ही रिलेटेड नहीं है, बल्कि इसका जो इम्पैक्ट कहें या इसका और जो ग्लोबलाइजेशन है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द सो मैनी, अगर हम कहें कि कल्चरल एस्पेक्ट और पॉलिटिकल एस्पेक्ट और ऑल दिस थिंग्स आर देयर. तो ग्लोबलाइजेशन, what is globalization? What is the meaning of globalization? After doing example करने के बाद हम globalization के meaning की बात करेंगे. तो globalization as a concept fundamentally deals with 4 flows. As a concept, अगर इसके concept के तौर पे बात करें तो ये 4 flows से डिपेंड करती है. First, the ideas flowing from one place to another. Ideas flowing from one place to another. Second, capital moving from one place to another. Then commodities taken from one place to another. And next one is the movement of people from one place to another. This as a concept deals with 4 flows. First is ideas. Second is capital. Third is commodities. Fourth is people. Ideas, कैपिटल, कमोडिटीज एंड पीपल. इन चारों से ये जो रिलेटेड है इट मीन्स इंटरकनेक्शन. इसका मतलब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटरकनेक्शन और इंटीग्रेशन अमंग नेशन. इट मीन्स इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शंस अमंग नेशन. तो अगर हम कहें कि आज ये जो ग्लोबलाइजेशन है that is a multi-dimensional concept because it consists of political, economic and cultural manifestation. ये political, economic and cultural manifestation जो है इसके कई aspects हैं जो कि 3 पार्ट में हम अपनी इस बुक में करेंगे. That means that is one is political, second one is economic, third one is cultural. So all. और अगर हम बात करें the impact of globalization are uneven. They are not equal. कि जो globalization की impact है that is uneven. और क्योंकि some societies are more affected by globalization, others are less. कुछ society ज़्यादा affect होती है globalization से, some are less, some parts are more affected, some are less. So this is the concept of globalization in which we do about the 3 example, one of Janardhan, Ramdhari and Sarika. And उसके बाद कुछ negative impacts की बात करें. तो अगर हम causes of globalization की बात करें तो what are the causes of globalization? First one, causes of globalization में क्या, सबसे पहले क्या है, जैसे हमने अभी अपनी बात की कि there are 4 flows of things. 4 flows are there in globalization: ideas, capital, commodities and people. Is this a new novel one? क्या ये नई चीज है कि आइडियाज का एक जगह से दूसरी जगह पे आना, लोगों का एक दूसरे से जगह पे जाना,
कमोडिटीज़ का एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना और लोगों का एक दूसरा जगह से दूसरी जगह तक आना. दिस वॉज ऑल्सो देयर इन द एंशिएंट medieval period when India had close relation or trade relation with other countries of the world. That was foreign trade in the form of import and export was also there earlier time. लेकिन आज जो ये जो ग्लोबलाइजेशन की कंसेप्ट है, the scale and the speed of flow जो है that has become changed. Scale and flow of the connection between all these things, ये जितना भी है, जितनी भी ये चीज़ें हैं, इनका स्केल और फ्लो जो है वो इसको एक यूनिकनेस प्रोवाइड कर रहा है. दिस इज प्रोवाइडिंग द यूनिकनेस. ये इसको इनको सबको एक यूनिकनेस प्रोवाइड कर रहा है. तो आज विच फैक्टर्स हैड अनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, आज इन फैक्टर्स की वजह से ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो अनेबल्ड हुई है. दैट इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस. आज स्केल कैसे चेंज हुआ है, आज डेंसिटी कैसे चेंज हुई है ग्लोबलाइजेशन की. आज नया ये कंसेप्ट क्यों ज़्यादा नया पढ़ा जा रहा है. तो पहले भी ट्रेड होता था, लेकिन आज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से आज इसमें बहुत सारा चेंज आया है. फॉर एग्जांपल अगर हम टेलीफोन, टेलीग्राम, इंटरनेट की बात करें, कंप्यूटर्स की बात करें, तो दे हैव रेवोल्यूशनाइज द होल वर्ल्ड. पूरी दुनिया को उन्होंने चेंज कर दिया, रेवोल्यूशन ला दी है. और इसमें जो बिकॉज ऑफ ऑल दीज टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, तो चीज़ें जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक इजीली पहुंच जाती हैं. और उतना ही नहीं, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स इज देयर. नॉट ओनली आइडियाज सर्कुलेटेड फ्रॉम वन पार्ट टू अदर ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांस. टेक्नोलॉजिकल की एडवांसमेंट की वजह से ही ये जो फ्लो है वो उसमें तेजी आई है. और फॉर एग्जाम्पल द गवर्नमेंट ऑफ not only this, the movement of capital and commodities will most likely be quicker and wider than the movement of people from across different part of the world. आज आइडियाज़ का या कमोडिटीज़ का जाना एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू पीपल. लोगों की बजाय लोगों की मूवमेंट जो है वो कम है. तो हम आगे बढ़ेंगे भी ऐसा क्यों है. तो खाली ग्लोबलाइजेशन जो है हैज़ इंक्रीज्ड एज कम्पेयर टू अर्लियर टाइम ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. बट इसके साथ देयर इज वन अनदर थिंग, दैट इज इंटरकनेक्शन. Interconnection among the countries or integration among the country is another factor which led to globalization. आज अगर एक पार्ट में कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसका अफेक्ट दूसरे पार्ट में होता है. इंटरकनेक्शन इज देयर अमंग नेशंस. इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड इज देयर. फॉर एग्जाम्पल अगर बर्ड फ्लू हुआ और सुनामीज आई, दे नॉट ओनली अफेक्टेड द वन पार्ट. आज अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो कोरोना वायरस कोविड-19 इज देयर. कोविड-19 जो चल रहा है, क्योंकि जिसकी दैट वाज स्टार्टेड फ्रॉम चाइना से उसकी शुरुआत हुई, लेकिन आज वो वर्ल्ड के सारे पार्ट्स को, सारे कंट्रीज को अफेक्ट कर रहा है. तो दिस इज ड्यू टू इंटरकनेक्शन अमंग नेशन. तो इस तरह से हम कहेंगे कि जो द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज फेल्ट आउटसाइड. They are not limited to local or national or regional level, but their impact are felt at the global level. तो हमारा ये एक पार्ट हमने अभी पूरा किया. In our next class we will complete the political consequences and economic consequences of this globalization. So all of you are supposed to read the chapter, complete the work, do assignment,